गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, sir. Good morning. sir. गुड मॉर्निंग. जूनियर सीनियर एलडी सभी लोग हैं ना? Yes, sir. कल की क्लास में क्या कर रहे थे बेटा कैलोरीमेट्री में? Heat gain equals to heat loss. ओके, मिक्सचर की प्रॉब्लम्स कर रहे थे शायद. मेथड हाँ, याद है, भूल गए? याद है sir. क्या होना चाहिए था अपने को आंसर? Whenever you are doing the mixture problems, you should get the answer between 0 to 100, isn't it? If you are getting above 100 means some steam is left out. If you are getting the answer in negative means certain amount of ice is left out. So in the problems he might be asking you about what? Compositions. Record हो रहा है ये? हो रहा sir. Yes, sir. हो रहा. Okay, चलो. See this question बेटा, everyone. 10 gram of ice at 0 degrees centigrade is added with 1 gram of steam. 1 gram of steam at 100 degrees centigrade. Find the resulting mixture. Find the resulting mixture. चलो ट्राई करो. अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बेटा? I am assuming to take the total system to 0 degree centigrade of water. कल मैंने 100 degree centigrade लेके करा था, आज मैं 0 degree centigrade लेके कर रहा हूं. So that you will get an idea how to do by both the methods. ठीक है, Yes, sir. कोई ट्राई कर सकता है क्या? देखो 2 मिनट का टाइम लेके ट्राई करो सभी लोग. पूरे सिस्टम को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के पास आना है. ठीक है, तो क्या क्या है मेरे पास? देखो यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 degree centigrade will come to 10 gram of water. 10 gram of water at 0 degree centigrade. तो क्या ice is coming to 0 degree centigrade in one single step बेटा? Yes, यहाँ sir. पर हो गया Q1. So this Q1 is equals to m into latent heat of ice. How much amount of mass? 10. Latent heat is 80. 10 into 80, that is 800 calories. ठीक है ना? Yes, sir. We are need to take 1 gram of steam. We need to bring the 1 gram of your steam. So 1 gram of your steam will come with 1 gram of steam at what temperature beta? 100 degrees centigrade will become into 1 gram of water. 1 gram of water at 0 degrees centigrade. Sorry, at 100 degrees centigrade. Then 1 gram of water will convert into 1 gram of water. We need to bring it to 0 degree centigrade. Na? 0 degree centigrade of water. 1 gram of water at 0 degree centigrade. At 0 degree centigrade. It is coming in 2 steps, beta. It is coming in the 2 steps. करो जल्दी से. कितना आएगा? यहां से यहां तक कितना है बेटा? 1 into ms delta t 1 into half 200. this one is 1 into 540 ना बेटा? Yes, sir. steam to water आ रहा है, चेंज इन फेस. तो ये हो गया ms into delta t. यहाँ पर ms into delta t. यहाँ पर m into your el. यानी Q2 I'll write here. Q2 is equals to 540 Plus 100. mass is 1, specific heat is 1 into 100. यानी ये बन गया 640 कैलोरीज. आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार फिर से. See here, 10 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 1 gram of your steam. 1 gram of your steam at your 100 degree centigrade.
find the resulting mixture. So what I'm doing is I'm assuming to take the total system to what beta? 0 degree centigrade of water पे ला रहा हूं मैं. I'm assuming to bring the total system to what? 0 degree centigrade of water. So पहले 10 gram of ice at 0 degree centigrade will become into 10 grams of water at 0 degree centigrade. तो ये कितना एक ही स्टेप में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के पास आ गया. तो Q1 कितना है? M into L of ice. So 10 into 80, 80. That is 800. Then 1 gram of steam at 100 degrees centigrade will convert into 1 gram of water at 100 degrees centigrade, and that will convert into 1 gram of water at 0 degrees centigrade. So 1 gram of steam is coming to the 0 degree centigrade of water in 2 steps. तो यहाँ पर Q2 is equals to यहाँ पर change in state हो रहा है तो 540 in plus ये mass is 1, specific heat of water is 1 into delta T, that is nothing but 100. So it is 640. आया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. यानी आइस को वाटर के पास आने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है? 640. वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितना एनर्जी है? 640. आइस को वाटर के पास आने के लिए 800 है, स्टीम को वाटर पे आने के लिए 640 है. 640. तो डेल्टा क्यू कितना बन गया? एक्सेस डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 800 minus 640. So that will be equal to 160 160. calorie. ठीक है ना? Yes, sir. तो आइस रह जाएगा कि वाटर रह जाएगा? Ice. Steam रह जाएगा. Ice. आइस रह जाएगा because आइस के पास ज्यादा एनर्जी है. So I can write here right now delta Q is equals to mass of ice left into your latent heat of your ice. Delta Q कितना है? 160. Mass of steam, mass of your ice निकालना है कितना है? Latent heat of ice is nothing but 80. So mass of your ice will be equal to 160 divided by your 80. That will be equal to 2 gram. So कितना mass of ice रह जाएगा? 2 gram. Actually कितना ग्राम है? 10 gram of ice. So in 10 grams of ice, 8 grams will convert into water and 2 grams will be still in the form of your ice. So what is the total amount of water? बेटा कोई बता सकता है क्या? 9 grams. Total water is equals to, actually total water is equals to 11 grams at your 0 degree centigrade. So remaining is how much beta? Remaining is how much? 11 gram में 2 gram is in ice. So 11 minus 2, that will be equal to 9 grams of your water. Is it clear? Yes, sir. Yes, So sir. final composition क्या है बेटा? 9 grams of water है और 2 grams of ice है. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. एक छोटा शॉर्टकट बता देता हूं. देखो यहाँ पर ये देखो, ये डेल्टा क्यू में कब आइस लेना है, कब स्टीम लेना है. अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो आप लोग इसको एक तरह से याद रख लो. व्हाट यू डू इज यू डायरेक्टली फर्स्ट फाइंड आउट द डेल्टा क्यू बेटा. डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू कभी भी क्यू ऑफ योर स्टीम माइनस क्यू ऑफ योर आइस करो. ओके तो यहाँ पर देखो, इसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ स्टीम. क्यू ऑफ स्टीम कितना है मेरे पास? देखो क्यू ऑफ स्टीम कितना आया? क्यू ऑफ स्टीम कितना है? 640. 640. तो ये हो गया 640 माइनस क्यू ऑफ आइस कितना है? 800. यानी डेल्टा क्यू कितने आ रहा? माइनस 160. Minus 160. That means when delta Q is positive, go to steam. It goes to steam. When delta Q we are getting in negative, it goes to ice. ठीक है? अगर आपका डेल्टा क्यू नेगेटिव है मतलब आइस रह जाएगा. अगर डेल्टा क्यू आपके पास पॉजिटिव है तो आपको स्टीम निकालना. ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes. फिर एक बार देख लो जल्दी से. कुछ डाउट रहा है तो पूछ लो. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो ये वाला देखो. अभी 2 की जगह 3 ले लेते हैं बेटा. मान के चलो आई एम हैविंग 50 ग्राम ऑफ आइस. 50 ग्राम ऑफ आइस
at minus 20 degrees centigrade is mixed with 10 gram of steam, is mixed with 10 gram of steam at 200 degrees centigrade, and this is mixed with 60 gram of water, 60 gram of water at 60 degrees centigrade. Find the resulting temperature. Find the resulting temperature. चलो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा. 50 gram of ice at minus 20 degrees centigrade is mixed with 10 gram of steam at 200 degrees centigrade and 60 gram of water at 0 degrees centigrade. तो क्या assume करके चलो, जो अभी मैंने assume किया ना वही करके चलो. Assume to bring the total system to 0 degrees centigrade of water के पास लाना. ठीक है ना? क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. तो पहले आइस को ले लेते हैं. देखो, आइस को बोलते हैं कि आइस यू कम टू व्हाट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर. तो आइस कितना है मेरे पास? देखो, 50 ग्राम ऑफ आइस एट minus 20 degree centigrade. Minus 20 degree centigrade will come to 50 gram of water. 50 gram of, sorry, ice. 50 gram of your ice at 0 degree centigrade. Then this will come to your 50 gram of water. 50 gram of water at 0 degree centigrade. ला लिया हम लोग ने आइस को 0 डिग्री के पास. देखो, 50 gram of ice at minus 20 will come to 0 first. Then from 0 degree centigrade of ice it will come to the 0 degree centigrade of water. आ गया सभी को यहाँ से यहाँ तक. यहाँ पर हो गया m into L of ice और यहाँ पर हो गया ms into your delta t. MS delta T आना सर. I से minus 20 से 0. So ये हो गया कितना? Mass is 50. Latent heat of this one is how much beta? 80 plus. Sir? Mass how much for me? 50. Specific heat of ice कितना है बेटा? Ice का नुकसान हो रहा है ना बेटा? That is nothing but 1/2 into temperature. Sorry, ये कितना आ रहा है? Temperature. वही सर. MS delta T आना सर वहाँ पर. हाँ, तो ML यहाँ की जगह. डेल्टा टी आना. यहाँ पर ms into डेल्टा टी यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा m into L of your ice. ठीक है ना? बस फिर से लिख देता हूँ. ओके, यहाँ पर आइस और आइस है तो यहाँ पर हो जाएगा ms into डेल्टा टी और यहाँ पर हो गया m into L of your ice. तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं. Q1 is equals to mass is how much for me? 50 grams. Specific heat of ice is nothing but 1/2 into temperature difference is nothing but 20. आया सभी को? प्लस ये मास कितना है? 50 into your 80. ये कितना आ रहा है देखो बेटा? 2 ones are 2 tens are 50 into 60. 500 plus 5 8s are. कितना है? आ गया 4000 plus 500 कितना है? 4500. 4500 कैलोरी. आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्या करोगे? 10 ग्राम ऑफ टी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड को कहाँ लाओगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के पास. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? 10 ग्राम ऑफ स्टीम at 100 degree centigrade will come to 10 gram of water at 100 degree centigrade. Then this will come to 10 gram of water at 0 degree centigrade. आया सभी को ये? Sir, steam 200 degrees पे.
अच्छा स्टीम 200 पे है, सॉरी बोला नहीं, पूरा लिखने के बाद बोलते यार। क्या करूं मैं इसको, देखो इसको एरो मार्क से निकाल देता हूं खाली, और इसका एरो मार्क निकाल देता हूं। तो यहाँ पर कितना है, 200 है ना, तो 200 से ये जाएगा 10 ग्राम ऑफ योर स्टीम 100 एट degrees. 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। Yes, sir. देन फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा, बराबर है, Yes, sir. ठीक है ना। चलो अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ms इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर स्टीम से what भी कंट्रोल कर रहा है, so it is m into L of your what steam। फिर यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है ms इंटू योर डेल्टा। तो Q2 कितना बना, कोई बता सकता है क्या। Q2 इज इक्वल्स टू, 69. मास कितना है 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ योर स्टीम 1/2 इंटू ये हो गया 200 माइनस 100 प्लस मास कितना है 10 इंटू ये हो गया 540 प्लस ये हो गया 10 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 और ये हो गया 100 माइनस 0। So that will be equal to how much? 2 1s are 2 5s are 10. 200 minus 100 is 100. तो ये हो गया कितना 500 प्लस ये कितना बन गया 5400 1,000. प्लस ये हो गया 1000। तो टोटल कितना बना 5,6,900। 6,900. आया सभी को, Yes, sir. सभी को आ गया Q2। Yes, sir. Then 60 gram of water at 60 degree degrees. centigrade should bring to, next आ रहा है मेरे पास अभी ये 0 degrees. 60 gram of water at what temperature बेटा 60 degree 60 degrees. centigrade, 60 degree centigrade should come to your 60 grams of water at 0 degree centigrade। एक ही स्टेप में आ गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा m इंटू एच इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर Q3 इज इक्वल्स टू बन रहा कितना वाटर के लिए, 1 into ये वाटर के लिए है, वाटर ऑफ 60 ग्राम्स, ठीक है ना। और ये था वाटर ऑफ, ये था स्टीम ना, ये था स्टीम के लिए, ये स्टीम की कहानी थी, ये वाटर की कहानी थी। तो Q3 कितना आ रहा बेटा 3,600. 60 into specific heat of water is 1 into 60 minus 0. 0. 6 6 are 36, so it is 3,600 calorie. So total heat is given by whom? Can anyone tell me? Total heat given is how much? Q2 plus Q3. क्योंकि they are losing the energy ना, तो ये बना कितना 6,900 plus 3,600, तो ये बन गया 1,500 कैलोरीज। तो डेल्टा क्यू कितना आ रहा पहले ही कैलकुलेट करो, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ रहा 10,500 माइनस 4,500, तो ये आ गया 6,000 कैलोरीज। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या क्या है मेरे पास, at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade, आप लोग अनम्यूट कर लो बेटा। We have 50 gram plus 10 gram plus 60 gram, that is equals to 120 grams. So 0 degree centigrade पे मेरे पास कितना है 120 grams, और मेरे पास कितनी एक्सेस एनर्जी है 6,000। So delta Q is equals to 6,000, that is equals to 120 into 1 into temperature is T minus 0। तो कितना आ रहा टेम्परेचर, तो इसमें से एक 0 और एक 0 चले गया, so this one is 12T, this one is 600, तो T will be equal to 600 divided by 12। सर हाँ बेटा, फिर से बोलना करते सर, समझने नहीं आया करते लोगों को। कहाँ से बेटा, ये शुरू से सम बोलना करते। देखो बेटा 50 ग्राम of ice at minus 20 degree centigrade is added with 10 gram of steam at your 200 degree centigrade is added with 60 gram of water।
तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं बेटा? वी आर एज्यूमिंग दैट द टोटल सिस्टम इज टू बी टेकन टू द 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। तो हम लोग 50 ग्राम ऑफ आइस एट -20 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस टू आइस आ रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है तो ms इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यस सर। देन आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अपने को लाना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर तक ही। तो आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर, तो देयर इज अ चेंज इन स्टेट, तो m इंटू एल ऑफ एयर आइस हो गया। ठीक है, यस सर। देखो 50 ग्राम ऑफ आइस एट -20 कहां पर लाना है अपने को? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर को लाना है, तो माइनस विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू 0, -20 degree centigrade of ice will come to the 0 degree centigrade of ice, then 0 degree centigrade of ice will get converted into 0 degree centigrade of water। यानी -20 से 0 तक आने के लिए 2 स्टेप ले रहा है। पहले आइस टू आइस हो रहा है, देन फ्रॉम आइस टू वाटर हो रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो यहां पर से यहां तक आने के लिए ms इंटू डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है यहां पर, और यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो m इंटू एल ऑफ योर आइस। तो Q1 is equals to 50 into half, 50 into your half into temperature difference कितना है यहाँ पर 20 प्लस ये हो गया 50, latent heat of ice is 80, इसको सिंप्लीफाई कर लो 4500 कैलोरीज। इस स्टेप आ गया सभी को? यस सर। Then, तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 10 ग्राम ऑफ स्टीम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 ग्राम ऑफ स्टीम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड विल कन्वर्ट इनटू 10 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100, यानी 200 से 100 को आएगा its steam, then 100 degree centigrade of the steam will convert into 100 degree centigrade of water, then 100 degree centigrade of water will convert into your 0 degree centigrade of your water। ये steps clear है सभी को? Yes, sir. यस सर। 200 से मेरे को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के पास आना है, तो उसकी जर्नी क्या होगी? ये 200 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम के पास आएगा, देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के पास आएगा, देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर तक आएगा। तो यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस है ms इंटू डेल्टा टी, यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, कितना है ये 100 और 100, तो ये कितना हो गया m इंटू एल ऑफ स्टीम, और यहाँ पर 100 से 0 टेम्परेचर डिफरेंस है ms इंटू योर डेल्टा टी, ms इंटू योर डेल्टा टी, तो ये कितना बन गया देखो Q2। सो Q2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू हाफ इंटू 200 माइनस 100 प्लस 10 इंटू 540 प्लस 10 इंटू 1 इंटू योर 100, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो 6900 कैलोरीज आ गया? यस सर आ गया। Yes, sir. फिर एक बार बतलाओ, समझ गए? समझ गए। फिर उसके बाद क्या बोला देखो 60 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर कितने पे है मेरे पास? 60 डिग्री से, तो मुझे कहां पर लाना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे लाना है। तो यहाँ पर देखो 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 60 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड विल कन्वर्ट इनटू योर वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? तो एक ही स्टेप में यहां से यहां तक आ जा रहा ms इंटू डेल्टा टी। तो कितना है मास 60, स्पेसिफिक हीट है 1, टेम्परेचर डिफरेंस 60 माइनस 0, तो ये कितना आ गया 3600 कैलोरीज। तो टोटल हीट गिवन इज हाउ मच फॉर मी? Q2 प्लस Q3। ठीक है, Q2 की वैल्यू कितनी है 6900, Q3 की वैल्यू 3600, दैट इज इक्वल्स टू 10500 कैलोरीज, दैट इज इक्वल्स टू 10500 कैलोरीज। क्लियर है? Sir, Q plus Q3 क्यों करे सर? हाँ देखो यहाँ पर देखो, अब गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर देखो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आने के लिए मुझे एनर्जी कितनी लगी? 4500 ही लगी। हाँ सर। अब देखो स्टीम 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड आने के लिए कितना लगा? 6900। तो क्या इसके Yes. पास एक्सेस एनर्जी है? हाँ सर। और उसके बाद यहाँ पर भी देखो वाटर एट 60 ग्राम 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आने के लिए कितना हो रहा है? 3600 है। कम है ना सर? हाँ, तो 6900, क्योंकि दोनों स्टीम और वाटर में कन्वर्टर है ना, बट ये तो डायरेक्टली आइस है, ये एक स्टेट है सॉलिड से वाटर को आ रहा, सॉलिड से लेके वाटर तक आने के लिए इसके पास एनर्जी कितनी चाहिए? 4500 चाहिए, isn't it? And total heat is given by whom beta? Total heat is given by whom? Team. Total heat is given by right now Q2 और Q3 मिला के कितनी चाहिए मुझे एनर्जी?
10,500 कैलोरीज लग रहा है दोनों मिला के। स्टीम टू वाटर, वाटर टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड आने के लिए 10,500 लग रहा, हाँ हाँ सर। लेकिन मुझे एक्चुअली चाहिए कितना, 4,500 ही चाहिए। तो एक्सेस हाँ। कितना है मेरे पास, 6,000 कैलोरीज है। ठीक है ना? यस सर। हाँ सर। यानी दिस 6,000 कैलोरीज के पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास कितना वाटर है मेरे पास, बताओ। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे पास 50 ग्राम्स ऑफ वाटर है, 10 ग्राम्स ऑफ वाटर है और 60 ग्राम्स ऑफ वाटर है। तो टोटली कितना ग्राम वाटर है मेरे पास, 120 ग्राम। ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्या बोला देखो इसके अंदर, अगर ये मिला रहे तो फाइंड द रिजल्टिंग टेम्परेचर। तो क्या पूरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता कि समवेयर बिटवीन 0 to 100 के बीच में रहता? 0 to 100। 0 to 100 के बीच में रहता, क्योंकि 0 से लेके माइनस से लेके 0 तक आने के लिए 4,500 ही ज्यादा था, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा एनर्जी है। दैट मींस वाटर विल बी नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट मोर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो टेम्परेचर मुझे नहीं मालूम, तो आई एम अज्यूमिंग इट दैट वन एज 10। तो कितना वाटर है मेरे पास, 120। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 एंड इट इज कमिंग टू सम कॉमन टेम्परेचर 0 से लेके T तक। कितनी एनर्जी से आ रहा, 6,000 एनर्जी से आ रहा। तो ये 0 चले गया, तो 600 इज इक्वल टू 12T। So T is equal to 600 divided by 12. तो कितना आ रहा, 50। 50 डिग्री सेंटीग्रेड आया। यस सर। Q2 Yes, sir. Q2 और एक बार, given है और सर, एक तो बार, ऐसा एक मतलब बार देखो, ये Q2 Q3 क्यों मिला रहा हूं मैं? Q2 Q3 इसलिए मिला रहा हूं कि आइस को वाटर पे आने के लिए 4,500 की एनर्जी काफी है, लेकिन स्टीम वाटर पे आने के लिए 6,900 ले रहा, और वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे आने के लिए 3,000 चेंज कुछ ले रहा है। कितना ले रहा था, 3,600 ले रहा था। यानी अगर ये दो मिला दूं मैं, स्टीम को और वाटर को, तो इन दोनों के पास एनर्जी कितनी है, टोटल हीट इज गिवन बाय व्हाट, Q2 प्लस Q3, दैट इज 10,500 कैलोरी ऑफ एनर्जी इसके पास है। ठीक है तीनों ना? को हम लोग दे रहे ना सर? हाँ, तीनों को ऐड कर रहे हैं ना हम लोग। सर Q1 भी आना ना सर, Q1 को ऐड नहीं कर रहे। नहीं, Q1 क्यों ऐड करेंगे बेटा, क्योंकि आइस जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने के लिए इसको इतनी एनर्जी मिल गई, ये तो 0 डिग्री पे आ गया। तो सर वो एनर्जी कहाँ से है सर? तो वही बोल रहा हूँ, एक मिनट देखो फिर एक बार, 50 ग्राम ऑफ आइस -20 से 0 डिग्री तक आने के लिए इसकी एनर्जी कितनी चाहिए आपको, बोलो 4,500 की चाहिए। जब स्टीम और वाटर मिला है तो आपके पास एनर्जी कितनी बनी, 10,500 बनी, क्योंकि दोनों भी वाटर पे आ रहे हैं ना बेटा। ये देखो, हाँ। स्टीम पहले वाटर पे आ रहा, ये भी वाटर है, ये भी वाटर 0 पे आ रहा, ये दोनों मिलके 0 डिग्री पे आने के लिए उन लोगों के पास एनर्जी कितनी है, 10,500 है। यस सर। देखो, ये देखो बेटा, ये एक आपका एक फ्रेंड है, मान के चलो Z, यहाँ पर एक फ्रेंड है ये, यहाँ पर एक फ्रेंड है C, और यहाँ पर एक फ्रेंड है B। अब बोल रहे कि तीनों मिलके हम लोग बोले, जैसा आप लोग फोकस में बैठ के पार्टी करते हो, बोला कि तीनों तीन जगह, बोला आप लोग फोकस को आ जाओ, विल ट्राई टू सिट हियर एंड विल डू द सेल्फ स्टडी, यहाँ बैठ के हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। अब ये तो नजदीक था, तो ये तो सीधा सीधा यहाँ पर आ गया। अब B के पास गाड़ी नहीं है, तो C वाला बोलेगा कि अरे यार आई विल ट्राई टू कैच यू अप, तो C पहले क्या आ जाएगा, C B के पास आएगा, इसको कैचअप करेगा, फिर ये दोनों मिलके यहाँ पर आ रहे हैं। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। क्लियर है? Yes, तो sir. ये स्टीम भी वैसी हो रहा था ना, देखो स्टीम जो है ना पहले वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, ऑलरेडी मेरे पास इतना वाटर था, अब दोनों मिलके अपने को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहे थे। ठीक है ना? यस सर। इसलिए मैं यहाँ पर Q2 प्लस Q3 ऐड किया। ओके सर, समझ गया। पक्का? यस। यस सर। बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ स्टडी आप लोग ही कर रहे हैं, अब ऐसे ही करोगे ना तो दिन आप लोग को सीट आइसर का ना नोट्स लिखते, बैठ के अपने मनमानी करते, लास्ट में फिर 6 महीने के बाद सूरज दिखाने की हालत नहीं रहती, ना नोट्स लिखते ना मेहनत करते। मैं कॉलेज में भी 500 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मालूम है, पूरे बच्चे नोट्स लिखते, समझ में आए नहीं आए, 1 घंटा वहां पर दे देते। आप लोग का 1 घंटा फिजिक्स के लिए बैठने के लिए ऐसा करते हो आप लोग कि जैसे आप लोग की पूरी जिंदगी जा रही है। बोले तो गुस्सा आता, बोलना नहीं, ऑलरेडी टफ सब्जेक्ट है, आई नो इट वेरी वेल, समझ में थोड़ा थोड़ा आता, कम से कम समझ में आते से तो भी लिखते नहीं। अब भी डॉक्टरों के सर का जैसा वो लिखना मारते ना, वैसे लिखना मार देते, किसी के पास एक मेंटेन नोट्स नहीं रही थी।
मैं कितना नीटली लिख रहा हूँ हर स्टेप आप लोग के लिए। आप लोगों को कम से कम नोट्स मेंटेन करने तक भी नहीं आता। वहीं बैठ को बॉटनी इमेज मारते रहता है, जूलॉजी इमेज मारते रहता है, और एक जन केमिस्ट्री इमेज मारते रहता। फिजिक्स पूरा मारने वाला सब्जेक्ट है, उसको तो पकड़ते ही नहीं। अब जैसा 1 घंटे आप यहाँ पर बैठे हो तो पूरी जिंदगी चले जा रही, पूरा टाइम वेस्ट हो जा रहा जिंदगी में। हर चीज इजी हो जाना। बॉटनी जूलॉजी समझ रहे हो क्या? पढ़ने के साथ धक बन के आने के लिए बिना मेहनत करने मेडिकल सीट आना। अपने को मेहनत होना ही नहीं है, अपने को सैक्रिफाइस करना ही नहीं है अपने को कुछ। कहीं को सैक्रिफाइस करते हैं अपन? मेहनत नहीं करते। बॉटनी जूलॉजी को अगर 1 घंटा लगा रहे, 2 घंटे लगा रहे, तो फिजिक्स को 4 घंटे पढ़ना। तो जब जाके आपको 80-100 मार्क आते। समझ में नहीं आ रहा तो समझ में आते वाला साथ बैठ के पढ़ना। इतना नीटली समझा रहा हूं मैं, वीडियो रिकॉर्डेड है, 1 से 2 बार सुनना। नहीं, ना नोट्स लिखते, ना आप लोग पढ़ते, ना रिवाइज करते, फिर वो स्टार्टिंग की कहानी चलेगी। बॉटनी जूलॉजी की जरूरत नहीं रहती ना, खाली किताब ले लो, कोनों में बैठो, पढ़ लेते बैठो। अरे कैलोरीमेट्री ऑलमोस्ट ऑल मैं मंडे से कितना रेगुलरली और पूरा टॉपिक्स हर वक्त में हर मॉडल करा रहा हूँ। हाँ, रेगुलरली बैठते नहीं ना, नोट्स लिखते नहीं। अरे समझ में भी नहीं आ रहा तो कम से कम अपने पास एक नोट्स रही पूरी टॉपिक की। तो कभी आपके पास, कभी मैं आ रहा हूँ या कोई और भी अच्छा वाला बच्चे आ रहे हैं, ऑलरेडी मेडिसिन करते वाले भी बच्चे आ रहे, वो नोट सामने रख लेके भैया यहाँ से यहाँ तक समझाओ दे बोल, तो कोई ना कोई तो समझाते ना। लिखते ही नहीं, पहले मेहनत ही नहीं करते, पेन पेपर पे लगाते ही नहीं। जैसे कि अब जिंदगी घट जाती या अपने को लाइफ निकल जाती इसमें। दुनिया पूरी ऑनलाइन में पढ़ रही है। मैं रोज 2000 बच्चों को पढ़ाता हूँ। हर बच्चा नोट्स लिखता मालूम है, हर बच्चा। अरे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आज जब से एक नोट्स मेंटेन करो, एक बुक पढ़ो, एक बुक पढ़ो, एक बुक पढ़ो बोल के। अब तक चैतन्य मेटल कंप्लीट करना हुआ नहीं किसी को। मैं हर चैप्टर के लिए बोल लेता हूँ कि चलो भाई कैलोरीमेट्री भी आप चैतन्य मेटल निकालो, पढ़ो बोल के। नहीं रहे तो जेरोक्स करा लेना, निकाल लेना, पढ़ते रहना। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, उस दिन की नोट्स निकाल लेना, पढ़ लेना, रिफर करते रहना। एक किताब तो भी खत्म करते, एक चैप्टर चलो भाई एक किताब में से पूरा हो गया बोलते, नहीं, 1-2 बच्चों को छोड़ के बाकी के बच्चे तो मैं समझ में नहीं आता बोल के बाजी छोड़। समझ में नहीं आ रहा तो कहीं को समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाते उस टाइम पे पूछो ना, अगर समझ में नहीं आ रहा, देखो आप लोग पूछ रहे तो नहीं समझा रहा मैं। मेहनत होना ही नहीं अपने को, हर चीज उसमें आ जाना इजी में, मेहनत ही नहीं करते। बोले तो गुस्सा आता, फिर बोलना नहीं। अरे कैलोरीमेट्री कितने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, कितना परफेक्शन हो जाता। मेटेरियल लेके श्री चैतन्य के मेटेरियल हमने 100 से 100 बार पब्लिसिटी हो जाए इसकी, तो मेरे बोल बोल के आप लोगों के सामने रोज निकाल के पढ़ लेते नहीं। कैलोरीमेट्री में नीटली लिखा हुआ है, सार क्या पढ़ा है, इसमें क्या क्या है, और इतने सारे सॉल्ट एग्जांपल्स। मैं एक 4 सॉल्ट एग्जांपल्स कर लूंगा, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कर लूंगा। नहीं, अपन आईएएस आईपीएस ऑफिसर, टाइम कहाँ रहता अपने पास बोलो? रोज 8 टाइम खाते, 9 टाइम सोते। चलो, अब 3 वाले मिक्सचर का प्रॉब्लम समझ में आया ना बेटा? 3 लिक्विड्स अगर मिक्स कर रहे हैं तो हम लोग रिजल्टेंट टेम्परेचर कैसा निकालते हैं? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और एक करवा देता हूं, देख लो, लेट अस ट्राई टू डू इट आउट, और थोड़ा परफेक्शन बन जाएगा। 2 grams of steam, 2 gram of steam at 170 degrees centigrade plus 14 gram of ice, 14 gram of ice at minus 10 degrees centigrade plus 16 gram of water, 16 gram of water at 30 degrees centigrade. All of them are mixed. Resulting temperature कितना? Resulting temperature is equals to how much? चलो, जैसे मैंने प्रीवियसली कराया वैसे ही करना है मेरे को। क्या assume करना है बेटा, जल्दी से बताओ। We will assume, 0 degrees Celsius. yeah, we will assume to bring the system to what? Charminar.
0 degree सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के पास लाएंगे। अब देखो पहला वाला लिख रहा हूं, 2 ग्राम ऑफ स्टीम एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी स्टीम एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड will convert into steam at 100 degrees centigrade, that will convert into water at 100 degrees centigrade, that will convert into 0 water degree. at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गया सभी को यहां से यहां तक? Yes, sir. स्टीम से यहां तक स्टीम है तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहां पर क्या यूज होगा, ms इंटू डेल्टा टी होगा। यहां पर 100 और 100 है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो m इंटू एल ऑफ आइस यूज होगा। 100 से 0 टेम्परेचर डिफरेंस है, तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी होगा। क्लियर है? यस सर तो स्टीम को लाने के लिए एनर्जी कितनी होगी ये बताओ, स्टीम को लाने के लिए एनर्जी कितनी होगी? Sir. Q is equals to Q of your steam is equals to, ये कितना है देखो, मास कितना है स्टीम का, 2 ग्राम्स। 2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ Half. आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितना, हाफ। टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 100 माइनस 170 माइनस 100, 70. 170 माइनस यहाँ तक हो गया 100, प्लस मास कितना है प्लस 2 इंटू दिस वन इज 540 प्लस अगेन 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू ये हो गया 100 माइनस 0। आया सभी को ये? Yes, sir. A2 चले गया, 170 माइनस 100 170 प्लस ये कितना बन गया 5400, सॉरी ये बना कितना देखो 540 इंटू 2 कितना बन रहा है बेटा, ये कितना बन रहा है 108. 540 इंटू 2 108. नहीं 108 2 इंटू 540 है ना बेटा 1080. 1350 1080 1080, sir. 1080 हो रहा, हाँ, sir. 1080 प्लस कितना है मेरे पास, ये 200 है ना, 200. हाँ, तो पूरा कितना आ रहा 1350. ये कितना है बेटा 1080 1080 70 1350 1350 आ गया। यस सर Yes. ये स्टीम के लिए। उसके बाद क्या है मेरे पास 14 ग्राम ऑफ आइस। अब चलो आइस के पास है तो वी आर गोइंग फ्रॉम आइस। आइस कितने टेम्परेचर पे है बेटा -10 -10 से ये आएगा कहां पर, आइस विल कम टू योर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गया। तो यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस है तो ms इंटू डेल्टा टी, और यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो m इंटू एल ऑफ योर आइस। तो q ऑफ योर आइस कितना है, एनर्जी ऑफ योर आइस कितना है, एनर्जी ऑफ योर 70 आइस कितना है, जल्दी से बता दो। ये कितना हो गया बेटा आइस ऑफ योर 14 into 14 grams half into 10 14 into specific heat of this one is half into ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 प्लस ये हो गया 14 into ये कितना है 80 तो ये कितना बन गया 2 1s 2 7s 14 ये हो गया 70 प्लस plus ये हो गया 1120 1120 तो ये कितना बना 1190 आ गया। Yes, sir. यस सर Then उसके बाद वाटर है, 480. उसके बाद वाटर है कितना, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर एट कितना है मेरे पास पता नहीं 30 degree centigrade. ओके सॉरी 30. 30 वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग को कहाँ लाना है, 0 degree. वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को लाना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है तो Q कितना बन गया ms इंटू डेल्टा टी। तो हाँ। एनर्जी ऑफ योर वाटर, वाटर के पास एनर्जी कितनी है, मास कितना है बेटा वाटर का 16 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाउ मच फॉर मी 1 इंटू 30. टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 30 माइनस 0 30 16 3 जा 480. 40 48 यानी 480 कैलोरीज। क्लियर है? यस सर Yes, sir. अब बताओ कि कौन सा ऐड करोगे और कौन सा सबट्रैक्ट करोगे, यानी मेरे 1350. पास क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है। यही कहानी जैसा मैंने आप लोग को बोला था ना अभी, आपको अगर Z पे आना है, फोकस को आना है तो ये वया पाथ्स है, उसी लिए करना है। यहाँ पर भी अपने को वाटर के पास आना है तो स्टीम के पास और वाटर के पास मिला के एनर्जी कितनी है बताओ। 1830
हाँ, तो कैन आई राइट नाउ अवेलेबल एनर्जी विथ मी, सॉरी, क्यू ऑफ योर स्टीम मिला सकता हूं मैं और क्यू ऑफ योर वाटर मिला सकता हूं। क्यू ऑफ स्टीम कितना है बेटा मेरे पास 1350 प्लस वाटर कितना है 480 अभी आया, तो ये कितना बन गया 1830 कैलोरी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? तो अभी क्या करना है, डेल्टा क्यू कितना आएगा मेरे पास, डेल्टा क्यू इज 640 आ रहा 1830 है। माइनस Minus 190, 1190. सो ये हो 640. गया 640 कैलोरी। तो 640 Yes, sir. कैलोरी मेरे पास एक्सेस है। Yes, sir. सो टोटल अवेलेबल वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, टोटल 32 grams. 32 अवेलेबल grams. वाटर, टोटल अवेलेबल 20 वाटर degrees हो जाएगा। at 0 degree centigrade is how much बेटा 2 grams plus 14 grams plus 16 grams, 16. तो कितना हो गया ये 32. 32 grams of water, 32 grams of water at 0 degree centigrade है मेरे पास। Yes, sir. Okay, now we need to convert this 32 grams of water at 0 degree centigrade to 32 grams of water at 100 degree centigrade। T degree centigrade. हाँ, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे कर लो, कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। 20 degrees Celsius. 20 degrees Celsius. Very good. 20 तो 64 is equals to 32 into 1 into T। आया सभी को? Sir, 640, sir. क्या बेटा? 640. 640. 640, okay, sorry, 640, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 32 20. 1 जा 32 2 जा, 20. यानी T is equals to 20 degrees centigrade, so it will come to a common temperature of your what 20 20 degrees sir. centigrade। Clear है? Yes, sir. Yes, sir. So by this we are keeping the full stop for the complete calorimetry। जितनी भी मॉडल्स अवेलेबल थे मैंने पूरे के पूरे मॉडल्स करवा दिया। इसके साथ आप लोग पूरी चैतन्य की मेटेरियल के प्रॉब्लम्स खत्म कर लिए तो ही आप लोग का कल के दिन एग्जामिनेशन में भला होगा। अब अगर आप नहीं करोगे, अरे सर पढ़ा दिए इजी है ना, या नहीं करे, प्रैक्टिस नहीं करे, छोटे छोटे चीजें याद न रखे, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, छोटे छोटे कन्वर्शंस वगैरह याद न रखे, देन इट विल बी वेरी टफ फॉर गेटिंग प्रैक्टिस। तो पूरा थर्मोमेट्री और पूरा कैलोरीमेट्री के जितने मॉडल्स होते हैं मैंने पूरे के पूरे करवा दिया। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग श्री चैतन्य के मेटल में के प्रॉब्लम्स पूरे के पूरे खत्म करना है किसी हाल में भी। क्लियर है? ऑलमोस्ट खत्म हो गए सर, थोड़े ही करना है। कौन है बोलते सर? साजिद। Who is this? साजिद भाई है साजिद। क्लास में सभी लोग बैठे हैं, बाहर फिर रहे लोग? है सर, क्लास में है। हाँ, तो ना, नोट्स भी लिख रहे हैं सर। आप लोग का नोट्स मत बताओ जब बोलता हूँ। मैं तो किताबें लेके सीधा खिड़की में से बाहर फेंक देता हूँ। पीछे की खिड़की दिख रही है ना, अगर नोट्स नहीं मिले आप लोग की, कुछ भी नहीं, क्लास पकड़ के नोट्स पकड़ के बाहर फेंक देता हूँ, फिर जाके ला लेना ढूंढ ढूंढ। मजाक नहीं सर, मैं बोल क्या बोले? क्या बोले? कैमरा खोला, देखिए क्लास। कैमरा पीछे वहां बायो की बुक कर लेके बैठा है साजिद। बोलने वाले कोई भी नहीं है, आप लोग मनमानी कर रहे हैं। हाँ? सर ऐसे अभी रहता है। सेकेंड ईयर की भी क्लास होगी। I mean, क्या बेटा? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी क्लास होगी अभी। अभी नहीं होगी बेटा, और टाइम लगेगा उसको। अच्छा ठीक है ना? और एक और है बेटा, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ कैलोरीमीटर। ग्राफ ऑफ योर कैलोरीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर एम्स वगैरह में रेगुलरली आते थे बेटा इस पे क्वेश्चंस। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो, you know that power is nothing but what beta? Rate. R is equals to dq by your dt. Energy by time. Energy by time is known as what? Power. Delta Q का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? Delta Q is equals to ms into delta t. और हम लोग लिख सकते हैं dq is equals to ms into your delta t.
एवरेज के लिए यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना बेटा? Yes, तो sir. इसमें से dq निकालो. सो r into your dt will be equal to your dq. लिख सकता हूँ ऐसा, यहाँ से लिखा हूँ. Yes, sir. तो ये हो गया r into your हो गया टेम्परेचर dt that is equals to dq. ओके सॉरी, ये dt नहीं है, dt नहीं है, ये क्या है यहाँ पर देखो, रेट मतलब क्या, r into dt, ये dt है ना बेटा, Time. टाइम है, dt is equals to dq. यहाँ पर हो गया ये टाइम, सॉरी. तो ये r into your this one is time dt small interval of a time is equals to dq. dq is equals to ms into your d theta. ठीक है ना? तो r की वैल्यू कितनी बन गई बेटा? r is equals to this one is m into your s into ये हो गया dt by your dt. लिख सकता हूँ ऐसा, Yes, sir. isn't it? ये क्या है? dt क्या है? टेम्परेचर है. और this one is your टेम्परेचर और dt क्या है मेरे पास? टाइम है. ठीक है? yes, हम sir. लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे dy by dx will give me what बेटा? Slope that is represented by m and that is also represented by your tan theta. याद है? Yes, sir. तो क्या मैं स्पेसिफिक हीट इसमें से लिख सकता हूँ? ये देखो, ये s का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है. इसमें से s को बाहर निकालो. s को अगर बाहर निकाला तो कैसे लिखूंगा? देखो, s is equals to this will be your r by your m. s is equals to your r by your m. dt by dt नीचे चले जाएगा पूरा, तो यहाँ पर हो गया d कैपिटल T by t, यानी स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू योर r by your m into ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पर स्लोप, लिख सकता हूं, Yes, sir. isn't it? Yes, sir. यानी स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप. r is nothing but rate and m is nothing but mass. This is your important formula for the graphs to be remembered. Specific heat is equals to rate divided by mass into slope. Slope मतलब क्या? Delta T by your dt. Delta T divided by your dt. अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसको, यहाँ पर ही ड्रॉ कर लेता हूँ. देखो, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस. तो यहाँ पर y एक्सिस पे मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ और x एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूँ. ये ग्राफ पे क्वेश्चन इसी तरह से पे आते हैं बेटा, आप लोग को इसी तरह से याद रखना है. मान के चलो आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस. ये हो गया ए टू बी, ए टू बी. दिस इज नथिंग बट ऑफ योर सॉलिड. सॉलिड मतलब क्या? दिस इज एट ए टेम्परेचर ऑफ T1, माने -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस. ठीक है ना? कितने टाइम लग रहा है जाने के लिए आपको? टाइम T1 लगा समझो. Then you are going from B to say for example C. Solid plus liquid. Then क्या पर होता है? देखो, melting start हो रहा है ना? Water. Melting and is getting converted into what? Liquid. तो यहाँ पर हो गया पॉइंट C. समझ में आ रहा है? अभी देखो एक बार रफली बता देता हूँ. -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने पास क्या रहेगा बेटा? सॉलिड रहेगा ना, Ice. आइस. और माइनस से कहाँ पर आएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 पे, degree. तो ये भी सॉलिड ही रहेगा ना, Yes, sir. लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस है. सो सॉलिड ही कह रहा, लेकिन 0 से जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे जा रहे हो तो State यहाँ change. क्या हो गया? मेल्टिंग स्टार्ट हुआ. Yes. आइसक्रीम जब मेल्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, तो क्या हो रहा है? इट इज कन्वर्टिंग ना, मेल्टिंग बोलते हैं ना उसे हम लोग. Yes, sir. Yes, sir. देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर विल कन्वर्ट इनटू योर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर. Yes, sir. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट. Yes, sir. वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, उससे ज्यादा कुछ नहीं. फिर ये पूरा ग्राफ से ड्रॉ कर रहा हूं मैं बेसिकली. सो ट्राई टू रिमेम्बर इन टर्म्स ऑफ योर ग्राफ. यहाँ देखो, यहां से यहां तक गया सॉलिड, तो यहां पर बी के पास स्टार्ट क्या होगा? मेल्टिंग स्टार्ट हो रहा, मेल्टिंग स्टार्ट्स. और बी से सी तक चले गया तो इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट बेटा? लिक्विड. इट विल गेट इनटू कन्वर्ट इनटू लिक्विड. फिर लिक्विड से क्या हो जाएगा? इट विल, टेम्परेचर बढ़ेगा ना बेटा. 0 से क्या हो जाएगा? 10 को जा रहा, 20 जा रहा, 30 जा रहा, 40 जा रहा, 100 को जाएगा. 100 को जाके लिक्विड क्या हो जाएगा? इट विल रीच ए पॉइंट ऑफ, मान के चलो D, और इसके पास एक टाइम होगा यहाँ पर, और इसके पास एक टाइम आ गया. फिर उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा. फिर दिस इज सम टाइम राइट नाउ. देन फिर इट विल कन्वर्ट इनटू गैस. फाइनली वेपर में बन रहा है ना, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू गैस. तो यहाँ पर इस स्टेज पे क्या हो जाएगा? देखो,
इस स्टेज पे यहां पर लिक्विड भी रहेगा प्लस गैस भी रहेगा, यहां पर प्योरली लिक्विड है, ठीक है। और ये स्टेज क्या है बेटा, इस स्टेज पे मेरे पास सॉलिड Solid. प्लस लिक्विड है, सॉलिड प्लस लिक्विड है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहां पर देखो क्या टेम्परेचर B2C, व्हाट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। B2C टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस सर। टेम्परेचर D यहां पर देखो ये C है, ये D है और ये E है, मान के चलो D2E भी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना बेटा, आइसोथर्मल। ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान के चलो ये T2, तो ये भी कौन सा हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है, Yes, sir. आ गया। यस सर। अब देखो, अब अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये याद रखना है, Q इज इक्वल्स टू M इंटू रियल, ये अपने को मालूम है ऑलरेडी। Q की वैल्यू कितनी है बेटा, Q वैल्यू इज नथिंग बट R इंटू योर dt is equals to M into your L. So it is R. This one is the time T2 minus of T1 is equals to your M into your capital L. तो L की वैल्यू कितनी हो गई, L is equals to R by your M into T2 minus of your T1. T2 minus T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, Time. यानी latent heat is directly proportional to what, change in time, or it is directly proportional to your time difference T2 minus T1, but not temperature. Delta T is nothing but what for me, time. क्लियर है? तो यही फॉर्मूला याद रखना है, बस इतनी पूरी कहानी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला। लेटेंट हीट इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, स्लोप। स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मास एंड स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। कैपिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रेट, रेट ऑफ योर एनर्जी dq by dt, ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन बता देता हूं कैसा आता है इस पे। देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, एक बार एम्स में पूछा गया हुआ था। He has given me the graph like this. यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम, और यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल टी, और उसने ग्राफ ऐसा दे दिया। ये बोला कि ग्राफ ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा कांस्टेंट है थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसा बढ़ गया, फिर ऐसा कांस्टेंट हो गया, फिर ऐसा बढ़ते चले गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ गई, यहाँ पर एक कंडीशन आ गई, यहाँ पर एक कंडीशन आ गई, और यहाँ पर एक कंडीशन आ गई, ठीक है ना। और उसने डाटा दे रखा था प्रॉब्लम में, दिस एंगल वाज योर 53 डिग्रीज, और ये था सॉलिड, ओके। यहाँ पर एंगल थी 37 डिग्रीज, ठीक है, और टाइम यहाँ पर था मेरे पास 4 आवर्स। देन यहाँ पर नहीं, 4 सेकेंड्स ही ले लो, आवर्स कैलकुलेटर है, 4 सेकेंड्स ले लो, ये हो गया 10 सेकेंड्स, ये हो गया 20 सेकेंड्स, और ये हो गया 30 सेकेंड्स, ठीक है ना। सो दिस वाज द गिवन ग्राफ। और क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड नंबर 1 स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। नंबर 2 latent heat of your melting point divided by latent heat of your vapor, that is equal to how much? एंगल्स दे रखा है, बाकी का डाटा कुछ भी नहीं दिया, मास नहीं दिया, रेट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो क्या स्पेसिफिक हीट अपने को एंगल में मालूम है, कैसा, स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। स्लोप कैसे लिखोगे, tan थीटा। So we'll be writing that one in terms of your tan theta. तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो जल्दी से, Yes, specific heat of solid divided by specific heat of liquid is equals to slope inversely proportional है ना बेटा, this will be your slope of your, that is angle of your what, I can write this one as a theta of your liquid divided by tan theta of your solid, inversely proportional है ना बेटा, है ना। यस सर। लिक्विड के पास एंगल कितनी है, यहाँ पर लिक्विड आ रहा है ना बेटा, ये तो लिक्विड का लिए बताया था ना मैंने। यहाँ पर देखो ग्राफ, यहाँ से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को, गैस, ठीक है ना। तो लिक्विड के पास एंगल कितनी है, 37, सॉलिड के पास एंगल कितनी है, 53। 53. तो यहाँ पर क्या डाल सकता हूँ, लिक्विड के पास एंगल कितनी है,
tan 37 degree. tan 37 divided by tan 53. Throw specific heat of solid divided by specific heat of liquid is equals to tan 37 कितना बेटा 3/4. 3/4 ये कितना है 4/3 4/3. तो 1 कितना आ आएगा। गया 9/16. 60. आ गया सभी को. Yes. Number 2, latent heat of melting point divided by latent heat of vapor, that will be equal to how much? Latent heat किस पे डिपेंड कर रहा है देखो. टाइम पे डिपेंड करता है। Latent heat is directly proportional to time. Latent heat is directly proportional to time. यानी melting point कहाँ पर हो रहा है? Where is your melting point? This is your melting point. 4 to 10. So it is 4 to 10 यानी higher time minus lower time. 10 minus 4. 6. ये हो गया 10 minus 4 divided by वेपर कहाँ पर है? यहाँ पर वेपर बन रहा है गैस. 10. तो कितना है वहां पर 30 से लेके 20. 30 minus of your 20. 30 minus of your 20. 10 minus 4 कितना 6. 30 minus 20 कितना 10. 6/10 मतलब कितना 3/5. आ गया. Yes sir. इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो. मेरे पास अभी चार्जिंग भी हो जा रही है. बेसिकली आपको और एक 2-3 क्वेश्चंस इस ग्राफ पे कराऊंगा. एक ग्राफ कंपलसरी नोट्स लिखो आप लोग. 1 से 2 बार अच्छी तरह से पढ़ो. समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आस्क मी आउट. आई विल हेल्प यू आउट. कुछ भी नहीं है. बस ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राफ कि मेल्टिंग पॉइंट कहां पर हो रहा है, सॉलिड कहां पर है, लिक्विड कहां पर है. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल. टेम्परेचर अगर चेंजेस हो रहे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हो रहा है. वो हम लोग को याद रखना है. B2C सॉलिड प्लस लिक्विड. D2E is a liquid plus gas. यानी C2D will be your liquid. A2B will be your solid. E to your F मान के चलो यहाँ पर. E to your F will be your gas. ठीक है ना. और latent heat किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? Latent heat is directly proportional to your time, and specific heat is inversely proportional to the slope. Specific heat is also inversely proportional to the mass. कभी कभी masses दे देता लिक्विड में. Sometimes he will give me the mass. ठीक है. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट देखो, मैं इसका भी एक क्वेश्चन कर देता हूँ. 2 मिनट की तो चार्जिंग है मेरे पास अभी. जल्दी से क्वेश्चन देख लो. रफली दे रहा हूँ. एक मान के चलो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे है मेरे पास टेम्परेचर. और ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है मेरे पास. सो दिस इज द ग्राफ गोइंग लाइक दिस, देन इट इज गिवन लाइक दिस, देन फिर ये ऐसा चलेगा. ये स्ट्रेट लाइन है बेटा. उसके बाद और एक ग्राफ दे दिया उसने. he has given me one more graph. it is been rising like this. ठीक है ना. और ये यहाँ पर इसका एक पॉइंट है, ये इसका पॉइंट यहाँ पर है. देन ये कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर के बाद, फिर ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ गया बराबर, और इसके बाद इससे साथ में जा रहा. यानी ये दो भी कोइंसाइड हो रहे हैं. इसका पॉइंट और इसका पॉइंट दो भी कोइंसाइड हो रहे हैं. दिस वन इज गिवन एज ऑफ योर 12 seconds. दिस वन इज गिवन एज ऑफ योर 10 seconds. and this one is given as of your 6 seconds. ये है लिक्विड ए जिसका मास m है. दिस इज ए लिक्विड बी जिसका मास है 2m. और इसके पास जो टेम्परेचर यहाँ पर है, इसके पास टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके पास है टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड. आई एम राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से आप लोग करके बताओ. आई विल वेट. स्पेसिफिक हीट ऑफ योर ए डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ योर बी इज हाउ मच. सेकंड क्वेश्चन, लेटेंट हीट ऑफ योर ए डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ बी इज इक्वल्स टू हाउ मच. चलो जल्दी करो. करना सभी लोग. Two and three. क्या बोले? SA by SV is 2 and LA by LB is 3. देखो फिर से एक बार. फर्स्ट वाला 2 आ रहा सर. Yes sir. First वाला तो 2 है. टू और 3 आ रहा सर. नहीं बेटा, स्पेसिफिक हीट ए बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज 3:5 द आंसर.
क्या स्लोप भी देना ना बेटा, स्लोप भी है ना। स्लोप भी लेना है, मास भी लेना है। ये फॉर्मूला कहाँ गया है? ये वाला स्पेसिफिक इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्लोप। बी के लिए स्लोप कितना है बेटा? 10. 10, क्योंकि वर्टिकल 100 है, हॉरिजॉन्टल 10 है। 100/10, 10 आ गया। ए के लिए स्लोप कितना है? 200 डिवाइडेड बाय 6। और ए का मास m है, बी का मास 2m है। मासेस भी लेना है ना। यस सर। फिर 3:5 आ रहा सर। हाँ 3:5 आया। यस सर। You can write here. This will become your how much beta? Tan theta of V. your B Tan theta divided by tan theta of your A into MV by mass of your B divided by mass of your A. ठीक है। tan theta B मतलब क्या? tan theta B मतलब क्या हो रहा है देखो। tan theta B is equals to 100 B के लिए 100 divided by 10। तो ये 10 गेट्स कैंसिल, ये हो गया 10 बी के लिए ना बेटा, ये बी है ना। ये हो गया 10, ये हो गया 100 और यहां से यहां तक है 10। tan थीटा ये के लिए, tan थीटा 200. के लिए ये कितना है? 200 है डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 6। तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर डाल दो इसको। तो ये हो गया कितना बेटा? 10 इंटू मास ऑफ योर बी कितना है? मास ऑफ योर बी इज 2m डिवाइडेड बाय tan थीटा ऑफ योर ये कितना है? 200 डिवाइडेड बाय 6 इंटू ये हो गया m। ये m चले गया, ये 0 और ये 0 चले गया। तो कितना आ रहा देखो जल्दी से। 3/5 आता सर। 3/5 आ गया। यस सर। क्लियर है सभी को? Yes sir. तो उसके बाद सेकंड वाला देखो, लेटेंट हीट ऑफ योर ए डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ योर बी पूछ रहा है, होता है ना। लेटेंट हीट ऑफ योर ए बाय लेटेंट हीट ऑफ योर बी। लेटेंट हीट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। Time L difference. is equals to R into temperature time difference T2 minus T1 divided by mass पे डिपेंड कर रहा है ना अभी। तो latent heat of your A will be equal to R into T2 minus T1 12 minus 6 divided by mass of this one is A, isn't it? Latent heat of your B कितना है? R into T2 minus T1 यानी 12 minus of your 10 divided by mass is how much for me? 2m। तो ये कितना आ रहा है देखो, 12 minus 6 कितना है? 6r by your m minus 10 कितना है? 2 2r by your 2m। तो ये 2 gets cancelled, this one is r by m। तो latent heat of your A by B कितना आ गया? 6. Latent heat of your A divided by latent heat of your B is equals to how much? 6/1 यानी 6:1। क्लियर है? यस Yes. सर। पक्का? यस सर। ओके इसमें और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पावर वाले कॉन्सेप्ट, पावर वाले सवाल। We will do it tomorrow. We'll do it in next class. ठीक है? यानी पावर मतलब P is equals to work done by time वगैरह निकलते हैं ना, वैसे वाले कंडीशंस में इसमें भी पूरा पावर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है। सो पावर वाले सवाल हम लोग कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इतना तो आप लोग आज के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, और मैं जब तक आऊं तो मुझे पूरी कैलोरीमेट्री और जितना भी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखाया उसकी नोट्स आपके पास क्लियर और नीटली होनी चाहिए। गॉट इट? और नो एक्सक्यूज एट एनी कॉस्ट। अगर अली सर भी बोले तो आई विल नॉट कंसीडर, आई विल किक यू आउट ऑफ द क्लास, आई विल थ्रो ऑल ऑफ योर बुक्स आउट ऑफ द क्लास, दैट्स इट। पर इज्जत का कचरा मत करा लो आप लोग। बाय बेटा। Thank you sir. Thank you, sir. बाय। हाफिज। थैंक यू।